اتفاق پر یقین نہیں رکھتی، میں خدا کی آگاہی پر یقین رکھتی ہوں۔ میں ایک کٹر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی اور خدا کا میرے لیے ایک بہت ہی حیرت انگیز منصوبہ تھا، لیکن میں اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ یسوع نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا اور مجھے نئی زندگی دی، اور اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ یقین کریں تو خدا آپ کو آج نئی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ یسوع مسیح حقیقت ہے، وہ زندگی بدل دیتا ہے، وہ قسمت بدل دیتا ہے، اور وہ قوموں کو بدل دیتا ہے، اور وہ قومی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ ہیلو عزیز دوستو، میں عشق آبلہ ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ یسوع مسیح کا کلام شیئر کر رہی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح میں پرجوش ہوں، میں خداوند میں پرجوش ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اگر کوئی ایماندار ہی ہو، اگر کوئی مسیحی ہی ہو، بعض اوقات یہ آسان نہیں ہوتا کہ ہم پرجوش لوگوں کو تلاش کر سکیں، لیکن اگر آپ میری طرح کے ہیں اور خدا نے آپ کو تاریکی سے بچا لیا ہے، اس نے آپ کو بچایا ہے بہت ساری آزمائشوں اور مصیبتوں اور گڑھے سے، گھور اندھیرے بے حد بدنما گڑھے سے، میری طرح آپ بھی خداوند میں پرجوش ہوں گے، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے۔ میں اور میرا شوہر اکثر اوقات جیلوں میں جایا کرتے تھے، وہاں پر مقیم قیدیوں کے ساتھ منادی کرنے، اور انہوں نے خداوند کو قبول کیا جب انہوں نے اپنا تمام بوجھ، تمام گناہ، اپنا ماضی، اپنی زندگی کے تمام گھنونے کام مسیح کو دے دیے۔ ہم وہ جوش دیکھ رہے تھے۔ واقعی انہوں نے کہا، واقعی کیا آپ میرے ساتھ سچ بول رہی ہیں کہ یسوع میرے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کیا وہ میرے تمام گناہوں کے باوجود، میرے دل کے تمام گھنونے مواد کے ساتھ، کیا وہ آئے گا اور مجھے قبول کرے گا کھلی باہوں کے ساتھ اور کہے، میں تمہیں معاف کروں، میں تمہیں تبدیل کروں، میں تمہیں پیار کروں، اپنی وہ تمام چیزیں مجھے دے دو، وہ تمام مواد جو تم پر بوجھ ہے اور جو تم پر بے حد بھاری بوجھ ہے، مجھے دے دو۔ ہاللیلویا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی ایک اور شاندار خوبصورت کلام جو مجھے پسند ہے، لوکا 18 باب 9 سے 14 آیت تک۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا معصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں کہنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس معصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر تہیکی دیتا ہوں۔ لیکن معصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ وہ ہے جو مذہب کرتا ہے، یہ وہ تمام ہے جو مذہب لوگوں کی زندگیوں میں لا رہا ہے۔ جب آپ کچھ چیزیں کرتے ہیں اور جب آپ اس کی فہرست بناتے ہیں اور فہرست میں سے آپ ان چیزوں کو کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں کچھ ہوتا ہے اور ہم مغرور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سرفراز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگتے ہیں جو ایسا کام نہیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں مذہب اسلام کی ایک رکن تھی اور جب قرآن کا کورس کر رہی تھی تاکہ قرآن کے بارے میں اور جان سکوں، اور جب میں قرآن کو حفظ کر رہی تھی اور قرآن میں موجود آیات کو، میں ان لوگوں کو حقارت سے دیکھنے لگی جو قرآن کو صحیح نہیں جانتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کو کہا کرتی تھی، آپ کو نہیں آتی آیت الکرسی، آپ کو الہامی کتاب کا نہیں پتا، آپ کو یاسین کا نہیں پتا، آپ کو بقرہ کا نہیں پتا کہ آپ ان صورتوں کو نہیں پڑھتے۔ میں انہیں پڑھتی ہوں اور ان کے بارے میں جانتی ہوں۔ اور جب میں اپنا سر ڈھانپتی تھی، جب میں مسجد میں جاتی تھی، میں ان لوگوں کو حقارت سے دیکھتی تھی جو اپنے سر نہیں ڈھانپتے تھے۔
क्योंकि मुल्क तुर्की में औरतों के लिए सर ढांपना इख्तियारी है। लेकिन मैं उनको हकारत से देख रही थी, और जब मैं रमज़ान के महीने में रोज़े रख रही थी, मैं उनको हकारत से देखती थी जो रोज़ा नहीं रखते थे। किस तरह कोई रमज़ान के महीने में खा सकता है? आप जानते हैं कि मुझ पर क्या असर हो रहा था? मैं अपनी निजात अपने अच्छे अमाल और कामों से हासिल करने की कोशिश कर रही थी, और जितना ज़्यादा मैं कोशिश कर रही थी उतना ही ज़्यादा मैं गड्ढे में गिरती जा रही थी, जहाँ तक मैं दूसरों को हकारत से देखती थी। अपने आप को आजमाइशों और मुसीबतों में डाल रही थी, और वह कोई नहीं था जो मेरी सुने। मेरे पास कोई नहीं था, कोई भी मेरे हाथ थामने को तैयार नहीं था कि मुझे अंधेरे से निकाल सके, सिवाय यीशु मसीह के, सिवाय यीशु मसीह नासरी के, जो कल, आज और अब तक यकसा है। सिर्फ एक वही था जो मेरी तरफ था। लेकिन कलाम के इस हिस्से में यीशु कह रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मजहब के लिए कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मजहब के तमाम नाके तोड़े और रिश्ता इस्तवार करे। शायद आज आप एक मसीही हो और ये प्रोग्राम देख रहे हो, मेरे अल्फाज सुन रहे हो, और आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपने अच्छे कामों के जरिए निजात को कायम रखने की। आप अपनी ज़िंदगी में कभी कभार इतने रवायत पसंद हो जाते हैं, ये इंसानी फितरत में बहुत आसान है कि दूसरे को खुश कर सकें। लेकिन यहाँ मुझे आपको ये बताना है कि आपका बाप जो आसमान पर है आपसे उसी वक्त खुश हो सकता है जब आप मौसूल लेने वाले की तरह उसके पास जाते हैं। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मेरे लिए रास्ता बनाने के लिए शुक्रिया, मुझे माफ़ कर। और ये आदमी खुद में तसव्वुर करता है। मैं भी अपने आप के बारे में तसव्वुर करती हूँ। एक मर्तबा जब मैं मुसलमान थी, जब मैं कोशिश कर रही थी और बेहद कोशिश कर रही थी कि निजात हासिल कर सकूं, और मैं अभी तक नहीं जानती थी कि मैं बच जाऊंगी। कोई वादा नहीं था, कुछ नहीं था। अगर आप कहें मैं बच गया हूं और मैं जन्नत में जाऊंगा तो इस्लाम में इसे मगरूरी समझा जाता है। आप किस तरह जानते हैं कि आप बच गए हैं? लेकिन मसीहत में जब आप मसीह में होते हैं, जब आप अपने मुंह से इकरार करते हैं कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, वो आपके गुनाहों की खातिर मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आप तौबा करते हैं। तसव्वुर करें, मैं चाहती हूँ कि आप समझें, आपकी तौबा नजात का हिस्सा है। बगैर तौबा के, बगैर तस्लीम किए कि आप एक गुनहगार हैं, आप बच नहीं सकते। बहुत सी जगहों पर वो तौबा के पैगाम को भूल जाते हैं। आपको तौबा की ज़रूरत है, आपको तस्लीम करने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं, आप एक गुनहगार हैं, और फिर खुदा से कहें हमें मुआफ़ करे। जब तक आप ये नहीं करते, बगैर कुछ काम किए, बगैर एक अच्छे आदमी कहलाए, आप बच नहीं सकते। आप अपने लाखों लाखों डॉलर्स गरीबों को दे दें, आप बहुत से अच्छे अमाल कर लें, आप अपने पड़ोसियों के लिए खाना पका लें, लेकिन अगर आपके दिल में यीशु मसीह नहीं है आपके खुदावंद और नजात दहिंदा के तौर पर, तो आपके काम आपके लिए काफ़ी नहीं होंगे कि आप पाक कामिल खुदा की हजूरी में जा सकें। इसीलिए हमें नजात की ज़रूरत है। यही वजह है कि हमें मज़हब की नहीं, लेकिन हमें एक रिश्ते की ज़रूरत है। मैं ये अक्सर औकात कहना पसंद करती हूँ, मैं यीशु की पैरोकार हूँ और मैं यीशु के साथ चलती हूँ, बजाय ये कहने के कि मैं मसीही मज़हब की एक रुकन हूँ। मैं यीशु की पैरवी करना चाहती हूँ, मैं उसे जानना चाहती हूँ। जैसे पौलुस ने कहा, मैं उसे जानना चाहता हूँ और हर रोज़ उसके करीब होना चाहता हूँ। और यहाँ लिखा है कि फरीसी ने कहा, मैंने फलां काम किया है, जिस तरह मैं भी कहती थी मैंने किया। मैंने अपना खैमा, अपने पैसे खुदा के लिए दिए, लिहाजा मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ, लेकिन और मैं बिल्कुल उस मासूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ। मैंने ये फेसबुक पर देखा एक दिन, दूसरों को मत परखो, इसलिए क्योंकि वो इस तरह गुनाह नहीं कर रहे जिस तरह आप करते हैं।
क्या ये सही नहीं है? बाज़ औक़ात हम दूसरों की तरफ देखते हैं और उन्हें गुनाह करते हुए देखते हैं और हम सोचते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं क्योंकि हम उनकी तरह गुनाह नहीं करते, लेकिन हम दूसरे करते हैं। इसी वजह से हमें निजात की ज़रूरत है। हम सब लंगड़े हैं, हम सब अंधे हैं, हम सब माजूर हैं। लिहाजा हम खुदा के हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं और हम शिफा पा सकते हैं उसके जलाल की बदौलत, उसके छूने की बदौलत। हम सब माजूर हैं, हम सब में एक हिस्से की कमी है और उस कमी को महसूस करते हैं और किसी एक हिस्से में ये महसूस करते हैं। फिर यीशु आता है, फिर वो छूता है, फिर वो तब्दील करता है। मैं आज आपसे बात करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी एक मोहम्मद के बारे में। वो एक नौजवान आदमी है। उसने फेसबुक के ज़रिए मुझे अफ़गानिस्तान से लिखा। उसने मुझे लिखा, उसने कहा कि मैं आपके ख़तों को देखता रहा हूँ इशिक आबला, मैं उन्हें एक एक करके पढ़ता रहा हूँ, लेकिन मुझ पर कठिन वक्त गुजरा है। मैं आपके खतूत पसंद करता हूँ, मैं उन चीज़ों को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये यकीन करना बहुत कठिन है कि यीशु मसीह खुदा है या यीशु को खुदा का बेटा कहना। ये बहुत बड़ा मसला है मुसलमानों के साथ, यीशु मसीह को अपने दिलों में कबूल करने का। क्योंकि अगर एक मर्तबा आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा कह देते हैं तो ये बहुत बड़ी तौहीन रिसालत है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इंसान खुदा है। बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि अगर आप बेटा होने के तसव्वुर को समझ जाएं तो फिर ही आप समझ सकेंगे कि किस तरह यीशु ने अपना बेटा होने के नाते एक रास्ता बनाया ताकि आप खुदा के बेटे और बेटियां बन सकें। उसका बेटा होने के वसीले से C.S. लुइस कहते हैं, हम खुदा के बच्चे बन गए और खुदा आपके लिए रास्ता बना रहा है इंसानी जिस्म की सूरत में जाहिर होकर, और खुद को हम पर जाहिर किया और हमें रास्ता दिखाया। उसका बेटा होना उस तरह नहीं है जिस तरह मुसलमान जिनसी ताल्लुक होने का दावा करते हैं, जो हमारे लिए तौहीन रसालत है, लेकिन उसका बेटा होना हम तक एक कंवारी के जरिए मसीहा की पैदाइश है, और जो इलाही कुदरत के जरिए आया और इंसान होने की सूरत में दुखों से गुजरकर, इंसानी आजमाइशों से और इंसानी तकलीफ़ों से हमारे लिए और हमारे वास्ते। और एक मर्तबा जब आप इस तसव्वुर को समझ लेते हैं, एक मर्तबा जब आप यीशु की इंसानी सूरत में आमद को समझ लेते हैं, फिर आप हमारी सतह पर आ जाते हैं, फिर आप उसका बेटा होने को समझ सकते हैं। लेकिन वो तमाम समझ मफूकुल फितरत है। लिहाजा मोहम्मद ने मुझे ये लिखा और मैंने उसे जवाब में लिखना शुरू किया। उसके खतूत में ये वो हिस्सा था जिसमें वो मुझे दुरुस्त करना चाहता था और वो मुझे लिख रहा था, आप जानते हैं मुझ पर यह कठिन वक्त था, तुम लोग जुनूनी हो। उसने लिखा, आप किस तरह ये यकीन कर सकते हैं कि इंसान खुदा हो सकता है। और मैंने उसे समझाना शुरू किया और मैंने दुआ करनी शुरू कर दी। मैं उसके लिए दुआ करती रही और मैंने कहा, खुदावंद उसके दिल की आंखों को खोल, मोहम्मद की आंखों को खोल, ताकि वो तुझे समझ सके, वो तेरी ज़िंदगी को समझ सके। क्योंकि कहीं कहीं उसकी तहरीर में मैंने उदासी को महसूस किया, मैंने उसकी तहरीरों में मायूसी को महसूस किया। वो अपने कुछ खतूत में वार कर रहा था, लेकिन उसके कुछ खतूत में मैंने मुखलसाना तौर पर यह चाहा कि उसके बारे में जानूं, और मैंने उसे अपनी गवाही लिखी। और अभी भी उसके लिए कठिन वक्त था ये समझने के लिए कि यीशु मसीह क्यों हुआ। अगर वो खुदा था तो उसने क्यों लोगों को इजाज़त दी कि उसको कत्ल करें। लिहाजा वो लड़ सकते थे। मैं और मोहम्मद ने एक दूसरे को ख़त लिखे, और कुछ देर के बाद मैंने मोहम्मद की तरफ से कुछ ना सुना। और फिर एक दिन मोहम्मद ने मुझे लिखा, उसने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में यीशु ने अपना आप मुझ पर जाहिर किया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं इसे किस तरह बयान करूं बहन इशिक, लेकिन मैं जानता हूं कि वो खुदा का बेटा है। मैं अब ये समझ रहा हूं। लेकिन एक चीज़ है, उसने कहा, मेरी तरह का एक गुनहगार। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है गुनाह जो मैंने किए हैं, बिल्कुल उस मासूल लेने वाले की तरह। उसने कहा, इस वक्त मेरे पास कोई ईमान भी नहीं है कि वो मुझे कबूल करे, यीशु मुझे कबूल करे। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, मैंने हर एक गुनाह किया है जो आप सोच सकती हैं। क्या आप सोच सकती हैं ये मुमकिन है?
और उसने कहा मैं ये आंसुओं के साथ लिख रहा हूँ, मैं अभी इस वक्त रो रहा हूँ जब मैं आपको ये लिख रहा हूँ। और मैंने उसके लिए दुआ की और मैंने उसे लिखा, मैं तुम्हारे लिए ठीक इस वक्त मोहम्मद दुआ कर रही हूँ कि खुदा तुम्हें दिखाए कि उसने तुम्हें कबूल किया है। बस तुम्हें ये करना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कोई भी गुनाह किए हों, बस तुम्हें ये करना है कि पहला कदम उठाओ और कहो मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ यीशु, मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ यीशु, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और फिर उसने मुझे दोबारा लिखा और उसने कहा, बहन इशिक मेहरबानी से मेरे साथ दुआ करें। और मैंने उसके साथ दुआ की और उसने यीशु मसीह को अपने दिल में कबूल किया। फिर मोहम्मद ने एक दिन मुझे लिखा, आप यकीन नहीं करेंगी मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे मैं कितना खुश हूँ, मेरे पास कितनी खुशी है। यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझे कह रही है, और वो उस वक्त अपनी माँ को बताने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि मेरी माँ भी मुझे कह रही है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने खुश हो, तुम हमेशा अपने आप को कमरे में बंद रखते थे या अपने दोस्तों के साथ चले जाते थे और दिनों तक घर नहीं आते थे, तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है तुम्हें। और वो बता रहा है, उसने मुझे लिखा, उसने अपनी माँ से कहा एक दिन मैं आपको बताऊंगा, एक दिन मैं आपको बताऊंगा। फिर उसने मुझे लिखा, मैं तब्दील हो गया, मैं तब्दील हो गया, मैं जानता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, उसने कहा। और उस वक्त बाइबल नहीं थी, मेरा मतलब है अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में अगर आपके पास कोई मसीही मवाद है तो आपको उसी वक्त सज़ा मिलती है। ये उसके लिए कितना ख़तरनाक था। लेकिन यहाँ वहाँ से, इंटरनेट से, मीडिया से उसने पढ़ना और समझना शुरू कर दिया। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास बाकायदा किसी चीज़ का ठोस मवाद नहीं था। लेकिन मैंने वक्त गुजरने के साथ मोहम्मद को खुदावंद में बढ़ते देखा। खुदावंद ने पाक रूह के ज़रिए से उसकी मदद की। मैंने देखा क्योंकि मोहम्मद ने अपने आप को फरोतन किया और खुदा ने उसको निजात दी। खुदा ने उसे सबसे बड़ा एजाज़ दिया, सबसे बड़ा सिला जो किसी ने कभी हासिल किया हो। और मोहम्मद ने मुझे एक और दिन लिखा, उसने कहा, मैं फिर रो रहा हूँ, मैं कभी नहीं रोया था बहन इशिक, मैं एक सख्त इंसान था, मैं इतना सख्त था लेकिन रोना बेबहा था। मैं कभी रोता नहीं था लेकिन मैं बेइंतहा रो रहा हूँ। खुदा ने मुझे इतना नरम दिल शख्स बना दिया है, मैं इतना नरम हो गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं अगर मैं अपना नाम तब्दील कर लूँ? मैं मोहम्मद नहीं रखना चाहता, क्या आप मुझे नया नाम दे सकती हैं? उसने मुझे लिखा। उस पहेली ने वाकई मेरे दिल को छुआ, उसने मेरे दिल के इंतहाई हिस्सों को छुआ। मैं टूट गई जब मैंने उसका ख़त पढ़ा, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ खुदा और उसका लामहदूद रहम ही मोहम्मद को इस तरह तब्दील कर सकता है। और मैंने उसे जवाब दिया और मैंने दुआ के बाद उससे कहा, मैंने कहा, मोहम्मद मेरा एक बहुत ही पसंदीदा शख्स है, वो कोई है यीशु के अलावा जिसको मैं बाइबल के नए अहदनामे में बहुत ही सराहती हूँ, और मैं तुम्हें उसका नाम देना चाहती हूँ, पौलुस रसूल। वो मेरे हीरोज़ में से एक है। और उसने मुझे जवाब दिया, उसने कहा, पिछली रात मैंने ख्वाब देखा बहन इशिक, और उसमें यीशु ने मुझे बताया कि आप मुझे वो नाम देने वाली हैं। ज़रा गौर करें, आप किस तरह इसको बयान कर सकते हैं, किस तरह आप खुदा के प्यार को समझ सकते हैं। शायद आज आप एक ईमानदार हों, आप एक मसीही हों। मुझे बहुत सी दुआ की दरख्वास्तें मसीही में ईमानदारों की तरफ से आती हैं, मेहरबानी से मेरी बेटी के लिए दुआ करें, मेहरबानी से। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर खुदा अफ़गानिस्तान में मोहम्मद तक पहुँच सकता है, दूर दराज इलाके में 19 या 20 साल के नौजवान लड़के के पास, खुदा आपके ख़ानदान के अफराद तक पहुंच सकता है, खुदा आपके वालिद तक पहुंच सकता है, खुदा किसी के पास भी पहुंच सकता है। बहरहाल अगर आप वो शख्स है जिसके लिए आपकी माँ दुआ करती रही, या आपका वालिद दुआ करता रहा, या कोई भी आपके लिए दुआ नहीं कर रहा, और आप ये पैगाम सुन रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप अपने अच्छे इमाल की वजह से बच सकते हैं, मैं यहाँ आज आपको ये बताना चाहती हूँ, उस महसूल लेने वाले की तरह होना है और आपको कहना है, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मुझ जैसे गुनहगार की मदद कर। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे दोस्तों, मैं इस्लाम के ज़रिए
खुदा की खुशनुदी हासिल करना चाहती थी। मैंने कलाम को हिफ्स करने की कोशिश की, कलाम को सीखा, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी में एक वक्त था, बिल्कुल उस वक्त कॉलेज के सालों में, मैं किसी को भी बता सकती थी ये कुरान है, कुरान को कहीं से भी खोलें, मैं आपको समझा दूंगी। मैं इस तरह की इंसान थी। मैंने सोचा कि मुझे इल्म हासिल करना चाहिए और अपने इल्म के वसीले से मैं खुदा के नज़दीक हो सकती हूँ। और मैंने सोचा कि इल्म हासिल करने की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में अहमियत हासिल कर सकती हूँ। मैं कॉलेज में गई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर उससे आला तालीम। लेकिन मेरा इल्म जो फ़लसफ़ियों ने कहा और मैंने पढ़ा, वो पढ़ाई जो मैंने की, मुझे सच्चे और ज़िंदा खुदा की आगाही ना दे सकी। और फिर उस दिन जब मैं ज़मीन पर मुंह के बल गिरी और उसे जाना और सिर्फ कहा, मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मैं गुनहगार हूँ, मेरी तरफ मुतवज्जो हो। मैं अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में नाकाम हुई, शादी में, अपने ख़ानदान के साथ ताल्लुकात में, अपने वालिदैन के साथ, काम पर, जज्बाती तौर पर, मुआशी तौर पर, रूहानी तौर पर दिवालिया। ये था जो मैं थी, मैं बैंक दिवालिया थी। और फिर मैं खुदावन के पास आई और कहा, मैं यहाँ हूँ, तेरा दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। क्योंकि मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। ये बहुत सादा पैगाम है, ये एक सादा पैगाम है मेरे दोस्तों। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। जब आप मांगते हैं तो आपको आपका जवाब मिलता है, जब आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, जब आप खटखटाते हैं तो जवाब मिलता है, तो दरवाज़ा आपके लिए खोला जाता है। मुझे याद है मैं बाथरूम में थी और मैं रो रही थी। उस दिन मैंने अपनी खुदकुशी का मंसूबा बनाया। मेरी छोटी बच्ची डे केयर में थी और मैं बाथरूम में थी अपने काम की जगह पर। मैंने आईने में देखा और मुझे खुद पर तरस महसूस हुआ और मैंने ऊपर देखा, मुसलमान होते हुए अपने तरीके से दुआ कर रही थी, लेकिन पहली मर्तबा अरबी ज़ुबान के अलावा मैं दुआ कर रही थी अपनी ज़ुबान में। मैंने कहा, क्यों क्यों, मैंने क्या किया है कि मुझे ये सिला मिला? तू मुझसे क्यों नफरत करता है? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया और तनतहा कर दिया? मैं यहाँ हूँ, बगैर ये जाने के ये बाइबल में लिखा था। मैं यहाँ हूँ, मैं तेरा दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। क्या तू मेरे लिए खोलेगा? क्या तू मेरे लिए रहनुमाई करेगा? और मैंने अपना चेहरा साफ किया रोने के बाद, बहुत ज़्यादा रोने के बाद, इतनी देर तक। फिर मैं ऑफिस में अपनी सीट पर वापस चली गई और मेरे बॉस ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और उसने कहा, इशिक, मेहरबानी से आए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। वो बाथरूम में मेरे रोने के बारे में जानता था और उसने इस बारे में किसी से सुना था। उसने कहा, मेहरबानी से तशरीफ़ रखें, लेकिन उससे पहले दरवाजे को बंद कर दें। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। मैं जानती थी कि कुछ तशवीशनाक है, क्योंकि कभी भी उसने किसी औरत के साथ इस तरह नहीं किया था। उसने कहा, मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे फर्मा बरदार बनना है। उसने कहा, मेरे खुदावंद यीशु ने मुझे बताया है तुम्हारी दुआ के मुतल्लिक जो तुमने बाथरूम में की थी। मेरे खुदावंद यीशु ने बताया है कि तुम उसका दरवाज़ा खटखटा रही हो और वो चाहता है कि मैं तुम्हें बताऊं, तुम न छोड़ी हुई हो न ही तन तनहा। वो हमेशा तुम्हारी तरफ है, इंतज़ार कर रहा है कि उसकी तरफ मुड़ो, इंतज़ार कर रहा है कि अपनी ज़िंदगी उसके ताबे कर दो। वो इंतज़ार कर रहा है कि तुम तौबा करो। और उसी लम्हे, ये वो लम्हा था जब मैं अपने मुंह के बल ज़मीन पर गिरी और मैं रोती रही और मैं ज़ारो कतार रोती रही और मैंने कहा, हाँ, मेरी तरह के गुनहगार को ले ले यीशु, मेरे अंदर आ, बसेरा कर, मेरे दिल को अपना घर बना खुदावंद यीशु। और उसी लम्हे उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और आज वो आपसे बात कर रहा है। वो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है अगर आप महसूल लेने वाले की तरह बन जाएं, अगर आप अपनी ज़िंदगी उसके ताबे कर दें। वो आपके लिए भी करेगा, वो आपके ख़ानदान के लिए करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह
उसने मोहम्मद को तब्दील किया, जैसे वो अफ़गानिस्तान में पौलुस बन गया। मुझे यकीन है कि वो शख्स एक दिन तारीक मुल्क में रोशनी का मीनार बन जाएगा। मुझे यकीन है कि वो शख्स एक दिन हजूम को तालीम देगा, अपने लोगों में अंजील की मुनादी करेगा। ये है वो जो खुदा करता है। मेरे दोस्तों, मैं कूड़ा थी, खुदा ने मुझे खजाने में बदल दिया। मैं गंदगी थी, खुदा ने मुझे पैगाम में बदल दिया। मेरी आजमाइशों और इम्तिहान को खुदा ने उन्हें गवाही में बदल दिया कि वो आपकी गवाही की फ़िक्र करता है। आज वो आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है, वो आपको एक नई गवाही देना चाहता है। और मैं आपके लिए दुआ करूंगी और आपके साथ करूंगी। अगर आप मेरे साथ शामिल हों, अगर आपके ख़ानदान के अफराद, दोस्त जिनके लिए आपका दिल बोझल है और आप चाहते हैं कि वो बच जाएं, आप चाहते हैं कि वो यीशु के प्यार का तजुर्बा हासिल करें, मैं उनके लिए दुआ करूंगी। क्या आप मेरे साथ दुआ में शामिल होंगे? प्यारे खुदावंद यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं अपना दिल तुझे देता हूँ। या आप अपनी ज़िंदगी दोबारा वक्फ करना चाहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा तेरे लिए वक्फ करता हूँ। मेरा दिल ले, मेरी ज़िंदगी ले, आ और मेरे अंदर बसेरा कर। खुदावंद, मैं इस वक्त तुझसे दरख्वास्त कर रही हूँ, वो लोग जो मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, उनके बच्चों को छू, उनके वालिदैन को छू, उनके ख़ानदानों को छू एक ख़ास तरीके से, ताकि वो तेरी तरफ मुड़े, वो अपने गुनाहों से तौबा करें और वो तुझे कबूल करें यीशु मसीह निजात दहिंदा के तौर पर। और तू उन्हें एक नई ज़िंदगी और नया दिल दे, तू उन्हें बरकत दे खुदावंद। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन। मेरे मुसलमान दोस्तों, अपना दिल यीशु को दें। मेरे यहूदी दोस्तों, मेरे बुद्ध और हिंदू दोस्तों, अपनी ज़िंदगी यीशु के ताबे कर दें, तौबा करें और बपतिस्मा लें यीशु मसीह के नाम में, बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में। आइंदा तक के लिए खुदावंद आपको बरकत दे।